So class today. Okay. So I'm sharing my screen with you people. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So today we are going to cover a new topic in product particular chapter, that is new product development. Now you can see two pics on my screen. Can you see that? These two Yes, pics? ma'am. Yes, ma'am. So can you tell me what these two things are? Can you please tell me? Google Glass What do you and one is a fan. think? Google Glass and Dyson air purifier. yeah, Dyson air purifier. Now you can see that why I have shown these two pics under new product Ma'am, I development. can't see the screen. Abhi, because I am entering the students na. Okay. Let's see. Can you see now? Yes, ma'am. Are you able to see now? No, ma'am. Screen. Now, now. Are you able to see? Yes, ma'am. अच्छा वो बार बार मैं ना विंडो कर लिया मैंने अपना वो दूसरा करती हूँ मैं क्योंकि द मोमेंट आई एंटर अलाउ अदर स्टूडेंट ना वो स्क्रीन चेंज हो जाता है मेरा ओके ठीक है नाउ टेल मी व्हाई आई हैव पुट दीज टू प्रोडक्ट्स अंडर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी I have written new product development and why I have given these two pictures. So what do you think? Why I have given so? Ma'am, they're fairly new to the market and they are Yeah. just gotten developed like in a few years and all. So Yeah. they want products like these Very like good. more. Very good. So these two products are here. They are the comparatively newer product because nowadays, because of this, what you will say, pollution, we need air purifier right now because, and especially when the around, and if we talk about India, so and particularly about Delhi, so air pollution level is already going high, right? You can see on your screen or in your TV or you can hear in radio daily that the Anand Vihar terminal or South Delhi or this part of the Delhi or that part of the Delhi, comparatively they show different kind of pollution level. Pitampura and every particular area they point out that which area is how much hazardous is at what level of PM 2.5 level, right? So this is a comparatively new product and Google Glass is again a new product. There was no precedent of that kind of thing. कुछ था नहीं, कुछ upgradation नहीं है. Completely एक new entry of the products है. जैसे iPod, I have not put that picture because iPod is comparatively old product now, or for that matter iPad, or for that matter mobile phone even, and the 3G with 4G or now the 5G. So smartphones. So these all are the example of new product development. However, new product doesn't mean that the product should be always new, altogether new. Like these two products are altogether new. Nothing of that sort was there earlier, right? Like mobile phone से पहले mobile phone जैसा कुछ नहीं था. लैपटॉप से पहले लैपटॉप जैसा कुछ नहीं था, राइट? बट अगर हम उसमें अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल पहले लैपटॉप बहुत बड़े बड़े होते थे, देन छोटे आने लगे. नाउ वी हैव द लैपटॉप जिनकी स्क्रीन अलग हो जाती है, हमारे पास कोडलेस पैड्स हैं. सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स. नई नई योगा 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 लैपटॉप्स आने लगे. योगा लैपटॉप्स का मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में स्क्रीन को घुमा लो, आप उनको टैब बना लो, आप उनको लैपटॉप बना लो. कॉम्बिनेशन आने लगा. सरफेस एक अच्छा एग्जांपल है. यू कैन completely remove it out and you can convert it in the tab and pad and again you can use it laptop. Magnet से वो अलग हो जाता है. So new product development necessarily doesn't mean that
it would be altogether new product, but new product development can be any modification, any new thing will also be categorized under new product development thing. जैसे iPhone 12 लॉन्च हो गया, राइट? सो क्या फीचर्स है, उन्होंने क्या नया दिया आईफोन में? किसी ने एक्सप्लोर किया? Somebody explored? iPhone 12 में क्या नया दिया उन्होंने? जी मैम, iPhone 12 में नया मैगसेफ चार्जर आया जिसमें पीछे मैग्नेट से चार्जर वगैरह लग जाता है। ओके, और मैम और बॉक्स में वो चार्जर नहीं दे रहे, ये भी एक है। सॉरी मैम बॉक्स में वो अडेप्टर नहीं दे रहे अपने। हाँ, और Okay. iPhone 11 मैम एज सच तो इस साल कुछ नया इन्होंने चेंजेस डाला नहीं है, बहुत माइनर अपडेट्स हैं पिछले साल से। एक 5G का अपडेट डाला इन्होंने, हाँ जी, किसका? 5G का। हाँ 5G, हाँ ठीक है 5G तो आया ही है, वो तो सबसे 5G का आया है, हालांकि इंडियंस के लिए वो अभी के लिए तो बेकार ही है, बिकॉज वी डोंट हैव 5G इन इंडिया राइट नाउ। फिलहाल के लिए तो वो आई डोंट नो, वैसे क्रेज है लेटेस्ट आईफोन का, दैट इज अनदर थिंग, उसकी इतनी मैम, यूटिलिटी। लेकिन इस साल जैसे आईफोन लॉन्च हुआ था एप्पल के स्टॉक्स 4% से गिर गए थे। हाँ, और इसका एक और उन्होंने किया, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने 5 वेरिएंट्स निकाले हैं जिसमें एक स्मॉल स्क्रीन का मिनी भी निकाला है, राइट? सो 4 इस बार 4 सॉरी 4 है, 4 वेरिएंट्स। 4 वेरिएंट्स है, अच्छा मुझे 5 लगा था। ओके, 4 या 5 वेरिएंट्स निकाले हैं, और उसमें एक इन्होंने पहली बार ऐसे 12 की तरह एक मिनी स्क्रीन भी दे दी है, सो दैट टू otherwise Apple always say that we don't feel competition, we are a class apart, but still they have to come up with this thing because they know that they are losing market now, because ये OnePlus, Samsung से they are continuously losing the market, right? So again they have to fight the competition with all the new things. So basically idea is that new product development को अगर हम definition wise कहें, the development of original products, product improvements, product modification and new brands through the firm's own product development efforts. जैसे new product आई, जैसे Ajio आया, एक नया brand आया, फॉर एग्जाम्पल मारुति का मैंने आपको बताया था 2 ब्रांड्स में वो अब अपने आप को, अपनी पहले मारुति एक मारुति होती थी, राइट? ऐसे कुछ 2 अलग अलग उनके अम्ब्रेलाज नहीं होते थे, नाउ एक नेक्सा है और एक कौन सा है, 2 उनकी कैटेगरीज हैं, एक नेक्सा है और दूसरा आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एक नेक्सा के अंडर कर रहे हैं और एक पता नहीं कौन सा वो कर रहे हैं, लेट मी सी क्या है वो। मारुति के 2 ब्रांड से वो कर रहे हैं, मारुति का ट्विन मॉडल है, ट्विन मॉडल, ट्विन प्राइस इन इंडिया, एक है उनका आई डोंट नो, मैं याद नहीं आ रहा अभी मुझे, बट उन्होंने 2 मॉडल्स यूज कर लिए हैं, और उन्होंने अपनी महंगी कार जैसे सियाज वगैरह जैसी कारों को उन्होंने अलग उसके अंदर रखा है, अम्ब्रेला में शोरूम्स ही अलग कर दिए, राइट? पहले एक ही शोरूम होता था ना उनका, चाहे जो मर्जी कार हो। हाँ, तो अभी तो क्या मैम वो कर, नेक्सा ही हाँ अभी उन्होंने 2 शोरूम्स कर दिए हैं अंडर 2 नेम्स, जहां पर जो सस्ती कारें हैं उनकी, राइट, 10-12 लाख तक की वो अलग कर दी हैं, और एरिना एंड नेक्सा, या राइट? सो एरिना इज बेसिकली the cars which will deal in some जो छोटे उनके सस्ती कारें हैं उनमें, एंड जो उनकी नेक्सा है वो उनकी थोड़ी हाई एंड कार्स के लिए उन्होंने यूज किए, राइट? सो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसका रीजन क्या है, मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। few years back we wanted to buy a new car, right? So like any other family we were also exploring different showrooms and everything. So we could see the मारुति के शोरूम पर भी गए, because as such कोई ब्रांड को लेकर पिकअप नहीं था माइंड में कि ये ब्रांड लेना है ये नहीं लेना है, एक रेंज था माइंड में कि we need to buy a car of this particular range. So we were exploring whatever cars or whatever brands can come across in this range. So we went to Hyundai showroom, we went to Honda showroom,
और पता नहीं किसमें गए थे, और एक मारुति के शोरूम पे भी गए. Now when we entered the Maruti showroom, we could see the kind of customers बैठे थे वहां पर. We could see most of the customer were from rural area or maybe not from the big city, right? Like tier 3 city, like Jimidar types, farmers kind of people. So most of the people were sitting like of that stature sitting there, not that urban class was sitting in that Maruti showroom. It's not that urban people don't buy the Maruti, but I'm just telling you my live experience that when I went there, right now, 2-3 families of that particular background were sitting there. So someone in my family said that you just see the customer, which kind of people buy Maruti. They were not saying that they don't have money, but what they trying to mention that it is not that kind of car which which a person of your class is buying. Maybe people are preferring another kind of car, another brand of car. Maybe it's Hyundai, maybe it's any other. Now to it's Kia, but at that time it was not in the Indian market, right? So keeping this thing in mind, Maruti has come with two models, that is Arena and Nexa, because they know that their high-end consumer may not like that in the same showroom they are sitting, and in the same showroom the person with less income profile are sitting. See, when we are talking about luxury goods, it is there. Whether you accept it or deny it, some people buy few things because it shows the luxury. अब रेडो लोग खरीदते हैं तो रेडो टाइम थोड़ी डिफरेंट बताती है. इट्स जस्ट अ मार्क ऑफ योर सिंबल या Social status. सोशल स्टेटस, योर इनकम. वो आपका वक्त बताता है, वो आप बताता है. एक लाइट मोड पे हम जैसे बोल देते हैं. सो टाइम तो सब घड़ियां बताती है, वो रेडो आपका वक्त बताता है. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. सो सिमिलरली कई बार ब्रांड्स को अपने आप को अलग करने के लिए न्यू प्रोडक्ट, ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं और नई ब्रांड्स भी लानी पड़ती हैं. जैसे आई हैव शोन यू टोल्ड यू द न्यू एग्जांपल. जैसे मारुति पहले शुरू हुई लो एंड कार पे, फिर देन दिस धीरे धीरे दे केम अप विद हाई एंड कार, सियाज या उससे भी और अच्छी कारें. फिर उनकी पहले एसयूवी नहीं आती थी, अर्टिगा से दे एंटर्ड इन द एसयूवी. तो इस तरह से एक नया, मतलब दो दे वर डीलिंग इन द दिस थिंग ऑटोमोबाइल ओनली, बट दे आर एंटरिंग इनटू न्यू जोन्स. तो वो भी उनका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. सो द पॉइंट हियर इज दैट, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, that whenever a company is making any modification in a product, any new altogether new concept they are bringing, or they are upgrading their product, or they are bringing new different range within their own line, right? Maybe the higher range, or maybe lower, or maybe medium, anything. So they are basically going towards new product development, right? I think I'm clear till here. So every product development, every new thing follows a process. ऐसी अचानक से कुछ नहीं होता है. It always follows a process. So for new product development also, we have to go through certain phases. The first is RDI generation. Second is idea screening, then concept development and testing, marketing strategy, business analysis, product development, test marketing, and commercialization. Now, first of all, we will cover the idea generation. Now, idea generation kahin se bhi ho sakta hai. The first is sources, internal data source. So, how many of you know that in Google, every week they give one day off to their employees, compulsorily off, just to think about the new ideas. कोई काम नहीं कराते. They have their employees are just on the brainstorming process कि हम क्या नया आइडिया लेकर आए. So this is internal idea source. जब आपके employees एक नए आइडिया को लेकर आते हैं, आपकी R&D टीम लेकर आ रही है, या कोई और भी ला सकता है. It's nothing that कि सिर्फ R&D टीम लाएगी. जैसे मैंने आपको Google का एग्जाम्पल दिया, they are always encouraged to think about bringing new ideas, bringing new concept. तो कितने सारे ऐसे आइडियाज है गूगल के जो आए और चले गए. और अभी मैं I was just scrolling something, तो एक गूगल एक नई चीज लेकर आया है. Anybody can guess what thing they have bring? जैसे उनका आप देखेंगे ना, गूगल शीट्स है, गूगल मीट है, गूगल ड्राइव है, बहुत सारी चीजें. ऐसी एक नई चीज आई है उनकी, गूगल डैश. जस्ट फिल दैट ब्लैंक. क्या है वो? एनी गेसेस? मैम शायद शॉपिंग का कुछ है.
ओके, मे बी, मुझे नहीं पता अगर ये हो, जो मैंने देखा। शायद गूगल न्यूज है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ या हिंट देती हूँ। पेंडेमिक से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। सोचो। गूगल क्लासरूम। अरे वो तो बहुत पुराना है। गूगल वर्क स्पेस। ओके। यस मैम। हालांकि ये 2016 से था, पर इसको इन्होंने रीब्रांड किया है। ओके, बिकॉज पेंडेमिक की वजह से इन्होंने बहुत सारी, जैसे मीटिंग चाहिए, चैट चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये कॉम्बिनेशन से इन्होंने अलग लगा दी है। राइट, स्लाइड आपको शेयर करनी है, स्लाइड बनानी है, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे गूगल स्लाइड्स भी होता है, तो ये सारी चीजें अभी गूगल मीट में तो मीटिंग हो सकती है, ऑफिस की तरह सारे काम नहीं कर सकते हो। आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड गूगल वर्क स्पेस, बट वट दे आर सेइंग दैट ये जितने भी इनके बाकी सारे छोटे छोटे से जी सूट के चीजें थी, उन सबको इन्होंने कलेक्ट करके, कोलेट करके एक नया बना दिया गूगल वर्क स्पेस। हालांकि ये नया नहीं है, बट अगेन उसकी थोड़ी रीब्रांडिंग कर रहे हैं और उसको थोड़ा फेमस कर रहे हैं। राइट, कीपिंग कोविड इन माइंड। सो इंटरनल डेटा सोर्स ये हो सकते हैं। एक टर्म आपने कभी सुनी है, इंट्राप्रेन्योर? एनीबडी हैव हर्ड दैट? इंट्राप्रेन्योर। Yes, ma'am. क्या होता है? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? Ma'am, like employees are encouraged to think like an entrepreneur itself while being an employee. वेरी गुड। और इसका एक और चीज भी बोल सकते हैं, इसकी एक और चीज भी फेमस है, एक और डाइवर्जन भी। फ्लिपकार्ट किसने शुरू किया था? Sachin and Benny Bansal. Exactly. So do you know they were working earlier with Amazon? Yes, ma'am. So entrepreneur basically आप कुछ साल काम करते हैं, हालांकि उन्होंने तो बहुत जल्दी ऑफ ले लिया, बट आप कुछ साल किसी बिजनेस में काम करते हैं, आप मिड करियर में आ जाते हैं, और उसके बाद यू स्टार्ट अप विद योर न्यू थिंग इन दैट बिजनेस। सो बेसिकली दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि यहाँ पर वो डेफिनेशन आएगी जो आपने दी है कि एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स, तो आपको उस तरीके से देखना है कि आइडिया जनरेशन हो। तो बेसिकली इंटरनल डेटा सोर्स में यही होता है कि आप ऑर्डर्स नहीं फॉलो करें सिर्फ। जनरली जॉब में क्या फर्क होता है, जॉब में वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ऑर्डर्स, बट एंटरप्रेन्योरशिप में ये कहा जाता है कि यू आर गिवन फ्री हैंड, bring up any concept about anything and come up with some great idea, and then we will see the feasibility of that idea. Second है external data source. Now external data source में एक बड़ा common चीज है कि आप अपने employees से बोलते हो, सॉरी अपने customers को बोलते हो आप कि आप कुछ बताओ। मतलब एक्सटर्नल डेटा सोर्स कोई भी हो सकता है, कस्टमर हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट करती रहती है कई बार ओपन वो कि इसका लोगो बताओ, जैसे रुपी का साइन बना था वो एक्सटर्नल डेटा सोर्स था, है ना? ऐसे ही यूपीएससी अपने नए लोगों के लिए उन्होंने एक अपना एक्सटर्नल डेटा सोर्स के एक फ्लोट किया कि यू कम अप विद सम डेटा, कोई प्राइज मनी होती है कुछ भी। क्राउड सोर्सिंग भी थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल डेटा का ही एक टाइप है, बट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ये थोड़ा और ज्यादा ओपन हो गया है कि क्राउड सोर्सिंग में हम एक चीज को थोड़ा सा फेमस करने की कोशिश करते हैं कि एक चीज आई है, क्राउड सोर्स हुआ है, मतलब होते कॉमन पीपल ही हैं जो क्राउड सोर्स करते हैं, पर यहाँ पर आपकी बेसिकली एक ये देखा जाता है कि इनमें से कौन सा आइडिया ज्यादा फेमस हो रहा है अमंग पीपल ना। एक्सटर्नल डेटा में तो सबने अपना इंडिविजुअली दे दिया, आपका एक आइडिया है, हम ये नहीं देखते कि कितना इस लोगों ने बैक किया, वोटिंग कितनी हुई। क्राउड सोर्सिंग में हम जनरली ये देखते हैं कि एक ही आइडिया, इसकी वोटिंग्स कितनी हो रही है, राइट? लोगों ने ये आइडिया दिया, कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर कंपनी डिसाइड की अच्छा कौन से टॉप आइडियाज हैं, हम उसको वी विल थिंक अबाउट दिस। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी सोचे कौन सा नया फ्लेवर आना चाहिए, कोई भी न्यू आइसक्रीम वाली कंपनी सोचे हमें किस फ्लेवर की अभी आइसक्रीम डालनी चाहिए। एंड मी नोट फोन्स पता होंगे सबको, ठीक है ना? वो जितने भी R&D करते हैं, जितने भी न्यू फीचर लाते हैं, वो सब क्राउड सोर्सिंग बेसिस पर लाते हैं। उनके जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से जितने भी IT वाले होते हैं, दे एनकरेज दोस पीपल टू ब्रिंग अप सम आइडिया, उस आइडिया को फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में वो देखते हैं किसको कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है,
और उस R&D का जो कस्टमर होते हैं उसको अपना फेस भी बनाते हैं. इट्स नॉट दैट कि उससे चुपचाप आइडिया ले लिया और चुपचाप उसको कुछ प्राइस दे दे. नो, दे शो इट प्रॉपर, उसको अपना फेस बनाते हैं दैट दिस आइडिया हैज बीन जनरेटेड बाय दिस पर्सन. तो एक सेलिब्रिटी वाला फील भी अपने कस्टमर को देते हैं. सो दिस इज अ वे ऑफ एंगेजिंग विद योर कस्टमर्स ऑल्सो, राइट. तो ये डिफरेंट तरीका है आइडिया जनरेशन करने के. अब आइडिया तो जनरेट हो गए, बट जरूरी नहीं है ना कि सारे आइडिया फिजिबल ही हो, सारे आइडिया प्रैक्टिकल ही लगे, सारे आइडिया सक्सेसफुल ही हो. तो आइडिया स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां पर जितने भी उससे रिलेटेड स्टाफ या जितने भी रिलेटेड ऑफिसेज या जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस वाला अपनी फिजिबिलिटी देखेगा, मार्केटिंग वाला अपनी फिजिबिलिटी देखेगा, R&D वाला देखेगा कि ये बता तो रहे हैं, पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये इसके लिए हमें क्या इकोसिस्टम वी नीड टू अदर इकोसिस्टम. सो दे थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज. फिर ये आइडिया कितनी देर में एक सक्सेस बनेगा और क्या जब तक ये सक्सेस बनेगा तब तक क्या ये आइडिया की फ्लोट करने की जरूरत रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोई एक ऐसी चीज ले आती हूँ कि ऐसा कोई वर्चुअल कर लेती हूँ कि आप सारे अपने घर में बैठे हो, मैं भी अपने घर में बैठी हूँ, और एक ऐसी ऐप ले आओ जिसमें एक क्लासरूम की फोटो हो हमारी और ऐसा कुछ दिखे कि मैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हूँ और आप डेस्क पे बैठे हो. मेरे का आइडिया सो दैट अभी तो हम ऑनलाइन सिर्फ आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी पीपीटी देख पा रहे हो, पर एट दैट टाइम यू विल लिटरली फील VR को यूज करके कि आप लोगों को लगेगा आप क्लास के अंदर बैठे हो, मुझे भी लगेगा मैं क्लास के अंदर एंटर हो रही हूँ और मैं बिल्कुल वैसे खड़ी हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. दो एट द सेम टाइम आई एम एट माई होम एंड यू आर एट माई होम. कोई कहेगा आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्लासरूम की फीलिंग भी आ जाएगी, क्योंकि अभी एक ऑनलाइन में एक हल्का सा तो है दैट एंगेजमेंट लेवल थोड़ा कम है एंड आई एम नॉट एबल टू सी यू अनलेस यू ओपन योर कैमरा. बट वहां पे ऐसा होगा कि आई वुड बी एबल टू सी. लेट्स से मैं ऐसे कुछ फीचर्स प्रपोज कर देती हूँ, लेकिन मुझसे पूछा जाए कि अच्छा कब तक तैयार कर लोगे, मैं कहूंगी 3 साल तो मैं लगा दूंगी. सो मे बी माई आइडिया वुड बी स्नब्ड एट दैट पॉइंट कि तब तक तो कोविड ही ठीक हो जाएगा. आई मीन अगर मैं 3 महीने बोलूं, मे बी somebody can take a think कि okay चले कोई बात नहीं, but 3 years in that development, maybe my idea will not get that kind of attention at that time because gestation period is very high. So this is one of the example that कोई भी feasibility issue आ सकता है, उसके बेसिस पर हम आइडियाज को रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट. अभी जैसे हम कहें कि बियर वाली आइसक्रीम विद बियर फ्लेवर, ठीक है, या विद वाइन फ्लेवर आइसक्रीम हम लॉन्च करते हैं. सो मे बी दैट आइडिया मे नॉट बी लाइक इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोगों को इतनी बियर या इतनी हार्ड ड्रिंक्स लेने की आदत नहीं है. सो मे बी दैट आइडिया, चॉकलेट्स आती हैं बट स्टिल दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, राइट. बट आइसक्रीम डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सस्टेनेबल नहीं होगा. सस्टेनेबिलिटी मीन्स इतनी बड़ी मार्केट नहीं होगी जितना खर्चा हो जाएगा, एंड एज कंडीशन भी हो सकता है वहां पर लग जाए कि 18 ईयर से कम नहीं ले सकेंगे या 12 ईयर से कम नहीं ले सकेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्या मिक्सचर होगा. गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी लाइसेंसेज होंगे, बहुत सारी परमिशंस लेनी होंगी. सो मे बी मेरा आइडिया वहीं पे फ्लॉप हो जाए. सो दिस इज द सिचुएशंस जहां पर हमें स्क्रीन करना पड़ता है, हर माइन्यूट डिटेल पे काम करना पड़ता है कि ओके अब हमें अगर इस आइडिया को कन्वर्ट करना है तो हमें कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, whether it is doable or not. So that particular thing has been thought of this particular level. Now moving further, कंसेप्ट डेवलपमेंट. जब हमें लगता है मोटा मोटा कि ठीक है ये हो सकता है, देन हम उसके बिल्कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद ईच एंड एवरी डिटेल पर जाएंगे, राइट. जैसे आपने घरों के मैप देखे होंगे, एक तो मैं आर्किटेक्ट मोटा मोटा बना के दे देता है कि आपका यहाँ पे बेडरूम होगा, आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, आपको एक मोटी डिटेल दे देता है. फिर आपको एक अलग तरह की ड्राइंग आती है जहां पर वो आपको पंखा भी लगा के दिखाएगा, आपको स्विच भी बताएगा, वहां आपको कबर्ड का बताएगा, आपको बाथरूम में हर चीज बताएगा कहाँ पे क्या होता है मतलब बिल्कुल माइन्यूट डिटेल के साथ आपको जब एक ड्राइंग आती है तो वो डिटेल वर्जन जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट होता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, तो वहां पर कंसेप्ट आप पूरा का पूरा डेवलप करते हैं, राइट. और आप उसको कंज्यूमर के टर्म्स में कि इसको यूज कैसे करेंगे, इसका कब तक पे बैक पीरियड होगा, कितने दिन का नुकसान होगा, कैसे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे हम क्या क्या कंडीशन, पूरी की पूरी डिटेल्स आप इसके अंदर डालते हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आपका कंसेप्ट इसके अंदर आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगेन आपको मार्केटिंग, जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आने वाला है तब आप उसकी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं, कमिंग सून, राइट. आप उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करने लगते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कब आएगा, कैसे आएगा, और
ये सारा डिटेल करना होता है। और आपने मैंने आपसे शायद एक बार पहले भी बात की थी, कॉर्पोरेट मूवी शायद आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, तो वहां पर ये भी होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे सीक्रेट्स एक दूसरे में कंपटीटर्स में जाने का डर भी रहता है, तो उसको बड़ा सीक्रेटली प्लान करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि कोई और कंपटीटर तो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर आपका बिजनेस सीक्रेट लीक हो गया कि यू आर द एक्स कंपनी एंड यू आर डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मदर डेयरी ने जब काउ मिल्क अपना इंट्रोड्यूस करना था, पहले मदर डेयरी का काउ मिल्क नहीं आता था। नाउ यू नो दैट मदर डेयरी का काउ मिल्क आता है, अमूल का बाद में आना शुरू हुआ। सो एट दैट टाइम, और उन्होंने अपनी पैकिंग चेंज की थी, पहले उनका लोगो अलग तरीके का होता था, बाद में उन्होंने अपनी सारी पैकिंग चेंज की जिसमें उन्होंने पूरा फार्म काओ और पूरा ये दिखाया बेसिकली कि हम बिल्कुल रियल मिल्क आपकी प्लेट तक, आपके किचन तक लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे बड़े सीक्रेटिव प्लान्स थे उनकी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को पता था कि मदर डेयरी काउ मिल्क ला रहा है। जब उनकी सारी तैयारी हो गई, प्रोक्यूरमेंट हो गया, प्लांट लग गया, सारी स्ट्रेटेजी बन गई, डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो गई कि कहाँ कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्होंने पूरी मार्केट स्टडी कर ली होगी कि पीपल आर लुकिंग फॉर द काउ मिल्क, ये वो, तब उन्होंने जाकर वो एडवर्टीजमेंट देना शुरू करते हैं, तब जाकर देखते हैं कि अब हम इसको लोगों को बताना शुरू करते हैं, अनाउंसमेंट्स बेसिकली जो बनाना होता है, देन दे कम टू दिस थिंग। तो ये आपको पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। फिर उसमें भी ये भी डिसाइड करना होता है कि हम एक छोटे से रीजन पे पहले शुरू करेंगे, या ऑल ओवर इंडिया एकदम शुरू करेंगे, या हम सिर्फ ओवरसीज मार्केट में करेंगे, या हम इंडिया में भी करेंगे, या हम साइमल्टेनियसली सब जगह करेंगे। जिसे मूवीज के केस में होता है, कई बार कई कंट्रीज में एक साथ रिलीज होती है, कई बार पहले इंडिया में रिलीज होती है, बाहर बाद में रिलीज होती है, कई बार बाहर पहले रिलीज होती है, इंडिया में बाद में रिलीज होती है। एंड देयर आर सर्टेन मूवीज जो इस तरह का डिसीजन लेती है। तो ये सारे डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन वो बाद में करते हैं। जैसे आपने सोचा होगा मूवीज में भी कितने थिएटर्स को, कितनी स्क्रीन्स को राइट देना है, फिर बाद में वो और छोटी सिटीज में राइट्स देते चले जाते हैं, जैसे जैसे मूवी पुरानी होती रहती है, फिर और छोटे थिएटर्स में वो राइट्स देते चले जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें एक प्लान होता है। इट्स नॉट दैट कि आज उनका मन किया कि आज ये कर लेते हैं तो कल मन किया कि नहीं अब ये भी कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं होता। पूरी डिटेल प्लानिंग होती है मार्केटिंग की। उसके बाद हमारा आता है बिजनेस एनालिसिस। देखिए अल्टीमेटली एवरीबडी इज देयर टू डू द बिजनेस, राइट। तो बिजनेस एनालिसिस ऑफ कोर्स जब हम कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग कर रहे हैं तब तो हम कर ही रहे हैं, पर यहाँ पर हम बेसिकली और भी चीजें देखते हैं कि अब हमारी सेल्स कितनी होगी, हम मिनिमम कितना सेल करेंगे, मैक्सिमम कितना करेंगे, ब्रेक इवन कितना करेंगे, ओके हमारी कितनी कंपनी की कितनी प्रोडक्शन डेली होनी चाहिए सो दैट वी आर इनटू द प्रॉफिट्स, हमें सारा प्रोड्यूस खुद करना है या किसी और को भी अंदर मतलब करवा के अपनी सुपरविजन में किसी और की फैक्ट्री में भी करवाना है। सो देयर आर वेरियस डिसीजन रिलेटेड टू दिस। एक पूरा यूनिट अलग सेटअप करेंगे इसका, या हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट इसको हैंडल करेगी। सो दीज आर सम बिजनेस एनालिसिस काइंड ऑफ डिसीजन। फिर जाकर कहीं पर हम एक्चुअल में प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। बिजनेस एनालिसिस तक हम सब सिर्फ पेपर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो जब मैंने आपको बताया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, हम भले ही करेंगे प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद ड्यूरिंग टेस्ट मार्केटिंग, लेकिन हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे पहले, राइट। तो हम सारी चीजें सोच लेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, वो तो हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट से ही पता चल गया। तो ऐसा नहीं है कि सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी, पर बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलती है। इन्होंने एक प्रोसेस का नाम दे दिया है, बट एक्चुअली ये साथ साथ चलता है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है एंड देन दे कम अप विद द रिपोर्ट्स। फिर आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज आ जाता है। अच्छा, बिजनेस एनालिसिस में ये भी होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए जो मशीनरी चाहिए या कोई सिस्टम चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या टेक्नीशियंस चाहिए, वो बाहर हैं, हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, या हमें किस तरह के लोग रिक्रूट करने हैं। तो ये सारी चीजें भी पहले ही सोचनी पड़ती हैं, राइट। उस टाइम नहीं कि ओहो ये तो प्रोडक्ट बना है, अभी तो हमको इसके लिए ये चाहिए, ये बंदा हायर करने में तो अभी 2 महीने लग जाएंगे, बिकॉज मे बी आप किसी अच्छे बंदे को देखेंगे तो ही और शी मस्ट बी एम्प्लॉयड समवेयर, 2-3 महीने का उनको नोटिस पीरियड भी सर्व करना होगा। तो लैग टाइम ज्यादा आता चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट की इफेक्टिविटी खत्म होती चली जाएगी जितना आप लेट एंटर करेंगे, राइट। जब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, प्रोडक्ट में भी 2 चीजें होती है। फर्स्ट इज कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड अदर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंसेप्ट डेवलपमेंट में जैसे आपने याद है जब हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो हम कंसेप्ट बेसिकली अपना डेवलप करके अपने एंजल इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट है और हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो पहले ही आने से पहले ही उनके पास फंडिंग्स होती है। सो वो जो फंडिंग मिलती है वो कंसेप्ट डेवलपमेंट पे मिल जाती है। एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट
जैसे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मारुति कंपनी है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ आ जाए, इलेक्ट्रिक कार के साथ आ जाए, वहां पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारा काम ऑफ कोर्स उन्होंने भी किया है, पर कंसेप्ट नहीं है, वो एक रियल प्रोडक्ट लेकर मार्केट में ट्राई कर रहे हैं, वो हो जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कोई भी एक नया फ्लेवर का कोई कोल्ड ड्रिंक आ गया, कोई भी एक नया गैजेट आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनी कंपनी ही लगा लें, सोनी कंपनी कल क्या बनाने लग जाए, कैमरा वो ऑलरेडी बनाते हैं, बहुत सारे होम अप्लायंसेस वो पहले ही बनाते हैं, लेट्स से पंखा बनाने लग जाए, सोनी का पंखा शायद नहीं आता है, फैन नहीं आता है, सीलिंग फैन, कल वो पंखे बनाने लग जाए, तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट उन्होंने लिया है और फिर वो टेस्ट मार्केट करते हैं। तो हमेशा एडवाइजेबल यही रहता है कि हमेशा पहले छोटी जगह पर अपने प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए, सो दैट उसको पुल आउट करना आसान रहता है। अगर बहुत ज्यादा जगह पर आप अपना वेंडर का सामान भेज देते हैं, ऑल इंडिया में कर दिया, कुछ कर दिया, अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट, एंड अगेन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हमें पूरे इंडिया में एक साथ डालना है, अगर हम इंडिया की बात करें, या अपने स्टेट में डालना है, या कुछ डिस्ट्रिक्ट में, या सिलेक्टिव जगहों पर, ऑल इंडिया में सिलेक्टिव जगहों पर देना है, जैसे बिग सिटीज में शुरू करना है, वो कहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग करनी है। और कार्स के मामले में तो आपको पता ही है कि जब भी नई कार लॉन्च होती है, शोरूम में आने से पहले उसकी पूरी टेस्ट ड्राइविंग हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, इवन फोन्स का भी होता है। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो वेल इन एडवांस कि कौन कौन से फ्लोज आने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, राइट। तो ये बेसिकली आपको टेस्ट मार्केटिंग करना है, और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपका नई चीज शुरू होती है, वो शुरू है कि आप उसको फिर कमर्शियलाइज करते हैं, बड़े लेवल पर आप उसको एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं, और तब जाकर आपका नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, राइट। तो ये तो सारी स्टेजेस थी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इसके अलावा कोई भी एक होती है चीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बहुत छोटा सा है, मैं आपको इसलिए खत्म कर रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, जैसे हर चीज का लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि कोई चीज इंट्रोडक्शन स्टेज, जैसे मैंने आपको गूगल लेंस दिखाया, और मैंने आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाया, क्या था वो, एयर प्योरीफायर। सो कैन यू टेल मी, मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ। पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड स्टेज है ग्रोथ स्टेज, एंड थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। आई थिंक यू आर सो ग्रोन अप कि आपको ये तीनों स्टेज समझ आ रही है, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ इसको, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें से गूगल लेंस कौन सी स्टेज पे आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ या मैच्योरिटी? कौन सी स्टेज पे आपको लगता है कि वो बेटर फिट हो रहा है? कम ऑन, क्या लग रहा है, कौन सी स्टेज पे? हाँ जी, ग्रोथ। गूगल लेंस। मैम टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन। इंट्रोडक्शन स्टेज है बेसिकली, अभी आ ही रहा है, राइट। अभी ठीक से सब जगह आया भी नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो एग्जैक्टली करता क्या है, राइट। और जो एयर प्योरीफायर था, व्हाट अबाउट दैट? ग्रोथ। ग्रोथ, क्योंकि नाउ पीपल आर मच अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट, बट स्टिल नॉट एवरीवन इज हैविंग। एंड थर्ड एग्जांपल है मोबाइल फोन्स, कौन सी स्टेज पर है? स्मार्टफोन्स किस स्टेज पर है? इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, ग्रोथ स्टेज पर है, या मैच्योरिटी पे है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। देखिए, जब कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आ जाता है तो वो प्रोडक्ट तब ज्यादा बिकता है जब उसके अंदर नए नए फीचर्स आएंगे, नई नई कैपेबिलिटीज आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी पीपल, मार्केट इज अवेयर अबाउट दोज प्रोडक्ट्स। और अगर अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, देन यू नीड टू बी रियली डिफरेंट, यू नीड टू बी रियली इनोवेटिव, you need to be really relevant, only then people will buy, otherwise people will not buy। तो जरूरी नहीं है कि मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन ही आएगा। डिक्लाइन वाला कोई बताओ, फोर्थ स्टेज डिक्लाइन भी कह सकते हैं। डिक्लाइन स्टेज मतलब जब वो प्रोडक्ट खत्म ही हो गया, ऐसा हर प्रोडक्ट के साथ जरूरी नहीं आए। ग्रोथ में अब बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मैच्योर में है, जैसे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, या कितने पुराने प्रोडक्ट हैं 200 साल पुराने, जैसे सीलिंग फैन है, वो मैच्योरिटी की स्टेज पे, हर घर में सीलिंग फैन होता है, बट दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट की डिक्लाइन हो गई, राइट। उसमें अलग अलग कलर्स आने लगे, अलग अलग थ्री जो उसके वो होते हैं ब्लेड्स, 3 की जगह 4 ब्लेड आने लगे, फैन के साथ लाइट आने लगी, और बहुत नई नई चीजें आने लगी, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेकर आ रहे हो, राइट, सो दैट लोग खरीदते रहे। डिक्लाइन स्टेज का कोई प्रोडक्ट बताओ जो खत्म। मैम जो पुराने फोन होते थे बटन वाले। नहीं, डिक्लाइन नहीं है यार वो। मैम लैंडलाइंस। हाँ, लैंडलाइंस कह सकते हो, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, नाउ पीपल आर। और कुछ और प्रोडक्ट बताओ, किसी को याद है रील वाला कैमरा?
जिसमें रोल डलता था कोडेक का, सोनी Yes, का। ma'am. यस मैम। नाउ डोंट यू थिंक कि वो डिक्लाइन प्रोडक्ट हो गया बिल्कुल? कौन खरीदता है आजकल? रेदर कैमरा ही नहीं खरीदते हैं आजकल लोग, और अगर खरीदते हैं तो डीएसएल, वो क्या डीएसएलआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कैमरा को जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं जो, DSLR। Yes, ma'am. है ना, या वो खरीदते हैं। अभी आपको लगता है कि हमारे घर में कैमरा जैसी कोई चीज होती है कि हम खरीदते हैं? सिंस मोबाइल फोन्स हैव गुड कैमरा, डू यू थिंक कि फोटो खींचने के लिए somebody टेक करे कैमरा निकाल कर लाओ, कैमरा निकाल के लाओ? डू यू रिमेम्बर दोज डेज? अगर अपने बचपन के दिन याद होंगे कि कैमरा लेकर हम फोटो खींचते थे। दो आप लोगों ने शायद डिजिटल कैमरा ज्यादा देखा होगा, वो रील वाला तो इतना देखा भी नहीं होगा शायद, आप लोगों ने देखा होगा मतलब इतना यूज नहीं किया होगा, बट आप लोगों ने डिजिटल कैमरा पे शुरू फोटोज शायद खींचे हो बचपन में। बट आज की डेट में किसी भी चीज को कैप्चर करने के लिए हम घूमने भी जाते हैं, डू यू थिंक वी कैरी कैमरा विद आवरसेल्व्स अदर देन जो कोई वो बड़े वाले कैमरे का जिसको शौक है उसके अलावा? हैव यू एवर सीन कैमरा इन समबडीज हैंड? No, ma'am, rarely. सो दैट्स, या हम सीडीज में भी फ्लॉपी डिस्क देखे थे किसी ने अपने बचपन में? फ्लॉपीज No, ma'am. आजकल इवन सीडी भी राइट नहीं होती है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए भेजनी पड़ती है हमें जब तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, अदरवाइज सीडी का भी टाइम खत्म हो गया। सो दीज ऑल आर डिक्लाइनिंग थिंग। जैसे वीसीआर होते थे पहले, आई डोंट नो कितनों ने पिक्चर्स देखी वीसीआर पे, और फॉर दैट मैटर MP3 के भी आते थे ना वीसीआर जैसे, वो भी नहीं अब देखता कोई, राइट? तो ये सारे डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, पीपल डोंट बाय देम, राइट? ऑटोमोबाइल में विकी आया, Ma'am, Walkmans also. वॉकमैन्स ऑल्सो, वेरी राइट, कोई नहीं सुनता है। एक विक्की आया करती थी, जैसे स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होता है, विक्की भी आया करती थी जिसको बड़ी तेज पेडल मारने पड़ते थे तब वो स्टार्ट होती थी। इट्स नो वेयर, फॉर दैट मैटर स्कूटर्स खत्म हो गए हैं धीरे धीरे, जब से एक्टिवा और ये सब आया गियरलेस, स्कूटर का मार्केट डिक्लाइनिंग स्टेज पे। तो ये प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये आप एक कंपनी की पूरी कोशिश रहती है कि वो जैसी मैच्योरिटी पे पहुंचती है उसके अंदर न्यू फीचर्स लेकर आए। ग्रोथ स्टेज में एक कंपनी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो लोगों को अवेयर करे और अपने प्रोडक्ट बेचे। मैच्योरिटी में कंपनी की कोशिश रहती है कि अपने प्रोडक्ट के न्यू यूजेस बताए। जैसे मोबाइल फोन क्यों पॉपुलर होते जा रहे हैं, फिर इसके अंदर एप्स आने लगी, ऐप से मोबाइल फोन्स की यूटिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि अब मुझे जूम भी करना है तो मैं फोन से कर सकती हूँ, आई नीड नॉट टू हैव लैपटॉप्स। पहले मोबाइल की यूटिलिटी थी सिर्फ फोन करने की और मैसेज करने की, मोबाइल की यूटिलिटी और बड़ी व्हाट्सएप आने से, फिर मोबाइल की यूटिलिटी बड़ी सोशल मीडिया भी चला दिया, फिर मोबाइल की यूटिलिटी बड़ी एम कॉमर्स भी शुरू हो गया, आप अपने बैंक्स करो। मोबाइल की और यूटिलिटी बड़ी कि आप सारा कुछ फोन पे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से वो उसके मल्टीपल यूजेस लेकर आ रहे हैं, और मल्टीपल यूजेस लाकर अपने प्रोडक्ट की आप यूटिलिटी बढ़ाते रहते हो, तो आप मैच्योरिटी स्टेज पर ही मेंटेन रह जाते हो, आप डिक्लाइन की तरफ जाने से रोकते हो। मतलब सुसाइडल है डिक्लाइनिंग स्टेज, तो वहां से तो उठना फिर वापस साइकिल पे आना है। सो एवरी कंपनी वांट्स टू डू दैट, ठीक है? तो इसके साथ ही हमारा ना प्रोडक्ट का चैप्टर फिनिश हो गया है। एंड व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आई विल गिव यू वन असाइनमेंट टू बोथ सेक्शंस, और आप लोग, मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन शेयर कर दूंगी आप लोगों से, आप लोग प्लीज उसको ना PDF बनाकर मुझे मैं बताऊंगी कैसे करना है। सो लेट मी थिंक कि मैं कैसे उस सबको लूंगी, आप अपना PDF बनाकर मुझे उसको भेज दीजिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू टेक टुमारो, पर पता नहीं क्यों हो नहीं पाता समहाउ, हमारी रेगुलर क्लास मतलब 3-4 लाइन में हो नहीं रही है, बट लेट मी सी कैसे। कल मैं आपको प्राइसिंग का कराऊंगी, और प्राइसिंग के बाद आपको सर कंटिन्यू करेंगे, जो मैंने आपको बताया था राकेश सर है, ही विल कंटिन्यू, आई विल सेंड अ मैसेज टू हिम कि ही विल बी कंटिन्यूइंग द क्लासेस। टाइमिंग जो भी वो कहेंगे वो आप उनसे बात कर लीजिएगा।